इसके बावजूद हमारे ज़हन में, हमारे दिल दिमाग में एक जरा सा भी ज़्यादा और नहीं कि हमें भी मरना है और दूसरों के सारे कब्रिस्तान में होना है। इसके बावजूद हम किसी भी चीज़ में कोई कोताही नहीं करते, चाहे झूठ हो, चाहे चुगली हो, चाहे गीबत हो, हर मामले में हाजिर, सिर्फ मस्जिद के पीछे। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू नारुन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हो। सरकार के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचार है। एक साहबी रसूल जिसका नाम है सैयदना असीम रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि सरकार के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर हाजत की ज़रूरत हो तो साहबी रसूल जाओ, जहां पे दरख्त नजर आ रहे हैं, कह दो जाकर कि सरकार को क़ज़ाए हाजत की जरूरत है। सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन दरख्त के पास गए, खुद ब खुद दाएं बाएं अपनी जड़ों को उठाना शुरू कर दिया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ से घेर लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो साबिर रसूल को शिद्दत प्यास ने सताया। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिद्दत प्यास से मेरा हल्क सूख चुका। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी चाहिए। तो सरकार फला पहाड़ पर चल जा और उस पहाड़ से कह दे कि तेरे पास अगर पानी है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने के लिए कहा है। अब जैसे ही हजरत सैयदना साहब रसूल हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं तो वो पहाड़ रोकर अर्ज करते हैं, ऐ सैयदना अकील, जाओ जाकर प्यारे सरकार अहमद मुशतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कह दो कि जब से ये आयत करीमा नाज़िल हुई, जब से ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस दिन से लेकर आज तक रोता रहता हूं खुदा के खौफ से कि मैं भी उस पत्थर की तरह जहन्नम का ईंधन न बन जाऊं। अल्लाह, जब से आयत करीमा नाज़िल हुई उस दिन से लेकर आज तक मैं रो रहा हूं, मेरे
انسان ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم انسان ہیں کہ ہمارے دل میں ایک ذرا سا اللہ کا خوف نہیں۔ مسلمانوں ذرا خیال کرو، کس خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے میرے دوستوں، بولنا ہے اس آخرت کی فکر کرو، اس جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے سے بچو۔ جہنم کا کس قدر ہوگا معلوم ہے؟ جہنم کا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آگ کی ضرورت پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جہنم سے آگ لے کر کے جائے، تو کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر آگ لا کر ایک پہاڑ پر رکھ دی، تو پہاڑ جل کر بھسم ہو گیا، تو وہ آگ جلتا ہوا جہنم میں پہنچا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اس کھجور کی گٹھلی کے آدھی حصے سے بھی کم آگ کو جلایا گیا، پھر پہاڑ جل کر بھسم ہو گیا۔ اس آگ سے جو دھواں نکلا وہ دھواں وہی دھواں آج ہم جلا رہے ہیں، جس کو ہم آگ کہتے ہیں۔ جب اس دھواں کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن پتہ نہیں وہ تو اس وقت آئیں گے جب وہ جماعت میں کھڑے ہوں، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، جا کے تو سننا پڑے گا، کیونکہ ہم کو تو سدھرنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم جو لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کو کہیں گے سدھر گئے تو کہے گا ہاں تقریر سن کے ہم سدھر گئے، رات بھر تقریر سناؤ کہتے ہیں سدھر گئے، صبح ہوتے ہوتے سب ہو گئے، ہاں صبح ہوتے ہی اتر گئے۔ آج ہم لوگ مسجد آنا نہیں چاہتے میرے دوستوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، مرنا طے کیا کیا ہو؟ جیسے آج ہم اپنے اولاد کے لیے خون بہاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بھوک میں رہتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے کہ وہ شان سے جیے، وہ عزت سے جیے، نام اٹھا کر جیے، سر اٹھا کر جیے۔ اپنے اولاد کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اپنے اولاد کے لیے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ آج فلاں شخص کا باپ انتقال ہو گیا، نہیں میرے دوستوں بزرگوں، بالکل غلط فہمی ہو کہ باپ انتقال کر گیا۔ ارے باپ تو اسی دن انتقال کر گیا تھا جب بیٹے کی خاطر باپ خون بہاتا، پسینہ بہاتا، مزدوری کرتا، مگر بیٹے کو دھوپ میں جانے سے روکا، اور وہ بیٹا جب شادی کرنے کے بعد اپنے باپ ماں سے منہ لڑاتا اور کہتا ہے کہ تو خاموش ہے، تو کیا جانتا ہے، تو سمجھ لو باپ آج نہیں مرا، باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے باپ کو مارا۔ سمجھتے ہیں؟ باپ اسی دن مر جاتا ہے جس دن ایک بیٹا جس کی خاطر باپ پسینہ بہایا، مزدوری کیا، جوان کیا، اپنے حصے کا کھلا کر اس کو بڑا کیا، اب اس کی شادی ہو گئی اور ماں باپ سے بھی لڑانا شروع کر دیا۔ جس دن اس نے اپنے ماں کا دل دکھایا، جس دن اس نے اپنے باپ کا دل دکھایا، سمجھ لو کہ باپ اسی دن مر گیا تھا، باپ اسی دن مر گیا تھا۔ اب لوگوں کو دکھاوے کے لیے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو سامنے دکھاوے کے لیے رونا بھی بیکار ہے۔ جب تک زندہ تھے ایک سے ملا کر کھلائے، اور جب مر گئے 40 سال پر 40 سال کیا فائدہ؟ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بات ہے کیا کہ سارے ثواب کرتے ہیں، اس کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ لیکن نماز افضل عبادت ہے۔ قبر میں سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دولت جمع کی، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے ہم قبر میں جائیں گے سب سے پہلے نماز کا، اور اس نماز کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ نماز کو ہم لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا۔ ہم لوگ سمجھتے کیا ہوگا، دیکھا جائے گا قبر میں جانے کے بعد کون کس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اور نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو توفیق دے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور چہرے پر نبی کی سنت سجائے ہیں، نبی کی سنت سجائے ہیں۔ اور تھوڑا سا کام کر لیجیے میرے دوستوں بزرگوں، سنت یہ نہیں ہے کہ صرف داڑھی چھوڑنا سنت ہے، اس میں بھی حد ہے، اس میں بھی قید ہے۔ کم سے کم داڑھی کو ایک مٹھی کرنا سنت ہے۔
मजदूरी करे आपको पैसा ना मिले तो लड़ जाओगे, और कल हो सकता है नबी की इसी सुन्नत को जिंदा करने की वजह से अगर सरकार की नजर करम हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। और अगर इसको फैशन बना लिए, समझ में आ रही है क्या फायदा? दाढ़ी है, सर पर टोपी लिए घूमता है, लेकिन नमाज नहीं। एक बंदा है उसके सर पर टोपी लेकिन नमाज नहीं। वो टोपी किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि लोग मुझे कहेंगे कि बंदा नमाज नहीं, लोग मुझे सलाम करें, मैं उसका सवाब नहीं। इस नियत से टोपी पहनना नहीं होगा। टोपी पहनना सुन्नत, दाढ़ी रखना सुन्नत। तो नमाज को मत समझो मेरे दोस्त, हमने जो नमाज को क्या समझ लिया है बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा और लोग समझते भी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। आज तक कभी ये नहीं कहेगा इमाम साहब सुनिए तो जरा मेरी नमाज होती है कि नहीं। एक सहाबी रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कब? नमाज से फारिग होने के बाद। सरकार सरकार की नजर उस सहाबी रसूल पर आए, सलाम किया, मुसाफा किया। सरकार ने कहा जाओ नमाज पढ़ो। ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए फिर आए, फिर नमाज पढ़ने के लिए फिर गए, 3 मरतबा नमाज पढ़ के आए। उसके बाद अर्ज करने लगे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ तक जहाँ तक हो सके मैंने तो पढ़ी, इससे बेहतर मैं नहीं जानता। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर मामला क्या, माजरा क्या, आप ही बता दीजिए। तो सरकार कि नमाज इस तरह से पढ़ो कि जब तुम खड़ा हो तो सीधा खड़ा, जब तुम रुकू में जाओ तो पीठ को सीधी करो, जब सजदे में जाओ तो हाथों की उंगलियों को और पैर के 10 उंगलियों को जमीन पर रखो। 10 उंगलियों को जमीन पर रखो और हाथों को तो कुछ लोग जमीन पर गिरा देते हैं। सरकार फरमाते हैं हाथों को इतना फासला रखो कि एक बकरी का बच्चा उसमें से जा सके, तब तुम्हारी नमाज होगी। वरना आज कुछ लोगों का हाल ये है, सरकार ने फरमाया, एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, उसी जगह पर एक सरकार ने भी फरमाया, सहाबी रसूल ने अर्ज की कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं मुर्गी की चोंच वाली, मुर्गी की चोंच का जैसे मुर्गा दाढ़ी चुभते हैं। कुछ लोगों की नमाज इस तरह से होती है मुर्गे की चोंच वाली, यानी कि जैसा कि मुर्गे दाने को चुभता है, दाने खाते हैं, इसी तरह कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, यानी फटाफट राजधानी से। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं जो लोग इस तरह की नमाज पढ़े उनकी मौत दीन मोहम्मदी पर नहीं, दीन मोहम्मदी पर नहीं हो सकता, उनकी मौत। अच्छा, एक और मसला याद सब जरूरी है सीखना। मस्जिद में भी कुछ आदाब होते हैं, मस्जिद के भी कुछ आदाब होते हैं। लोग एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दुनिया भर की बातें मस्जिद में करेंगे, राजनीति की बातें भी मस्जिद में होंगी। तो सरकार दुनिया भर की बातें मस्जिद में करे, जो दुनियावी बातें मस्जिद में करे, 40 साल की वो नेक आमाल उसकी बढ़ती। कितने साल? अल्लाह, 40 साल की नेक वो आमाल उसकी बर्बाद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हम किस ख्याल में होते हुए जहन्नम में एक वादी है, उसका नाम है लमलम। जहन्नम में एक वादी, उसका नाम है लमलम। अच्छा, उस वादी में क्या रहता है? जानवर। कौन सा जानवर? सांप। वो मोटे कितने होंगे? ऊंट की गर्दन की तरह, ऊंट की गर्दन की तरह। और लंबा कितना होगा? 1 माह की मसाफात के बराबर। 1 महीना 3 दिन होते, 24 घंटा रात दिन होते, आप जोड़ो तो इस वक्त कितना लंबा होगा। जन्नत में एक वादी है, उस वादी का नाम है लमलम, और उस वादी में सांप होंगे, उसकी गर्दन है ऊंट की गर्दन की तरह, ऊंट की गर्दन की तरह, और लंबाई 1 माह के मसाफात के बराबर, 1 माह की मसाफात। और मेरे दोस्तों, जब वो डसेगा, जब वो डंक मारेगा, तो उसका जहर उस बेनमाजी के
70 साल तक उसके जिस्म में जोश मारता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोग समझते हैं और वहां का बयान करें कि लोग समझते हैं कि मुंडियों का काम क्या है। देखो गुनाह कबीरा का तस्करा अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा? कल क़यामत के दिन हमसे भी सवाल होगा। ऐसी बात नहीं है कि उलमा छोड़ दिए जाएंगे, उलमा से भी सवाल होगा कि नबी के वारिस क्या गुनाह कबीरा का तस्करा किया था? हमने तस्करा कर दिया, आप लोगों ने तौबा नहीं, तो कल हमारी पकड़ नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि हम जिस जिम्मे से निकल गए हमने बयान कर दिया ताकि आप लोग नमाज पढ़ें, खुदा का और भी मसाला है। ऐसी बात नहीं कि दुनिया में रह जाएगा मत कर सकते। एक और वादी है जन्म, उसका नाम है जबुल हुज़्न। क्या है? जबुल हुज़्न। जन्म में एक वादी है जिसका नाम है जबुल हुज़्न। उसमें क्या रहते हैं? काले खच्चर की शक्ल में बिच्छू है, बिच्छू, काले खच्चर की शक्ल में बिच्छू होगा। खच्चर कितना बड़ा है? इतना बड़ा बड़ा बिच्छू, खच्चर के बराबर, काले रंग, काले खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे। और हर बिच्छू के साथ में 70 डंक होंगे और हर डंक में एक एक जहर की थैली होगी, एक एक जहर की थैली होगी। और जब वो बेनमाजी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक उसकी गर्मी उसके जिस्म पर चलती रहेगी। उस जहर की गर्मी 1000 साल तक उसके जिस्म में फैलती रहेगी। मेरे दोस्तों देखो हम इस ख्याल में डूबे हुए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ नमाज बचाओ अपने आप को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन। बचाओ अपने आप को उस आग से, बचाओ अपने आप को उस आग से जिसका ईंधन आग में रखा हो। इसीलिए कहा बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने औलाद को उस आग से। इसीलिए मेरा कहना है अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है कौन काबिल बनते हैं, नहीं बनने चाहिए। जैसे हम अपने औलाद के लिए रात दिन खून पसीना बहाते हैं, जब औलाद बिगड़ जाते हैं उसके बावजूद हम कहते हैं या अल्लाह मेरे बच्चे को सुधार, शराब से दूर, गंजा से दूर कर, यही दुआ करते हैं। तो इसी तरह से एक आलिम की जिम्मेदारी है कि भाई कभी किसी की गिबत ना कर, झूठ ना बोले, वरना हमसे भी पूछा जाएगा। कल एक एक अमाल के लिए, एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा, एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा। अच्छा एक बात, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बोलते बोलते बात याद आ जाती है। सबसे बड़ा गरीब कौन है किसी को पता? सबसे बड़ा गरीब हम किसको कहेंगे? जो भूखा रहता है, जो प्यासा रहता है, जिसके पास कपड़ा नहीं है। नहीं, एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा जिसके पास नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, खैरात भी होगी, हज भी होगा, उम्रा भी होगा, सदक़ात भी होंगे, सारी इबादतें उसके पास हैं। अब वो जन्नत में जाने वाले होंगे, अदालत में उसको खड़ा किया जाएगा, लोग भी गवाही देंगे, एक पाक परवरदिगार इसके पास बहुत इबादतें हैं, नमाज इन्होंने पढ़ी, रोजा इन्होंने रखा, हज इन्होंने किया, ज़कात इन्होंने दिया, खैरात इन्होंने किया। लेकिन इतने में कुछ लोग चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे। पाक परवरदिगार ये बात सच है कि ये नमाज, ये बात सच है कि रोजा रखा, ये बात सच है कि इन्होंने हज किया था, ये बात सच है इन्होंने खैरात किया था, इन्होंने सारी इबादतें की। लेकिन एक पाक परवरदिगार इन्होंने गाली देकर मुझे पाक परवरदिगार इन्होंने मेरी ज़मीन को बेहतर किया, ए पाक परवरदिगार इन्होंने मेरे खिलाफ चुगली भी की, ए पाक परवरदिगार इन्होंने मेरे खिलाफ गीबत की थी। सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे चारों तरफ। अब रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, है फरिश्तों इन बंदों से पूछो कि ये क्या चाहता है। तो वो बंदे अर्ज करेंगे, पाक परवरदिगार इस वक्त हमको नेकी की जरूरत है, नेकी की। यहाँ हमारे जेब में पैसा ना हो, क्या कहते हैं इसका क्या नाम है?
रिंगवा रिंगवा हम गए 50 रुपए लेकर, 10 रुपए कम पड़ गया, 60 रुपए का सामान हुआ, हम कहेंगे कल दे देंगे, वो मान जाएगा, मान जाएगा, मानेगा ना, कल दे देंगे, नहीं तो किसी से लेके दे देंगे। लेकिन वहां अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, अरे फरिश्तों बंदों से पूछो क्या मांगता है, वहां कोई किसी का परेशान हाल ना माँ बेटी की, ना बेटी माँ की, ना बाप बेटी का, एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं देगा, सब परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना होगा। ऐ पाक परवरदिगार, हमें नेकी की जरूरत है, वहां पैसे रिश्वत नहीं चलेगा, पैसे तो जाएगा भाई, खाली कफन में उसमें जेब होता क्या ना, पैसे नहीं जाते, संपल कफन में जाते हैं तो वहां तो पैसे का रिश्वत नहीं दे सकते हम। इस गांव में बहुत बड़े अमीर आदमी चलो पैसे दे दिया, कितने मीटर पैसे दबा देते हैं, दुनिया में दबा देते हो, लेकिन वहां क्या जवाब, यहाँ दबा सकते हो पैसे के बलबूते पर, लाठी के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर, लेकिन उस रब्बे कदीर को भी समझो, सब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनकी नेकियां आपस में सब में तकसीम करो, सारी नेकियां लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। अब एक बंदा उठकर खड़ा होगा, एक पाक परवरदिगार इसकी नेकियां तो खत्म हो गई, लेकिन इसने एक मरतबा मुझे भी तकलीफ पहुंचाया, क्या किया, कहीं पाक परवरदिगार मैं जा रहा था, थोड़ी सी टक्कर लग गई, उसने मुझे इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि पाक परवरदिगार मैं गरीब होकर से बर्दाश्त कर, सिर्फ गरीब होकर मैं बर्दाश्त कर, अल्लाह का हुक्म होगा, इसके पास नेकी नहीं है, वो बंदा कर तुझे क्या चाहिए, पाक परवरदिगार हमको क्या चाहिए, नेकी की जरूरत है, अब उसके पास नेकी नहीं है। वो बड़ा मुत्तकी जो था, परहेजगार जो था, आबिद साहब जो थे, जिनके पास नमाजें थी, रोजे भी थे, हज भी थे, ज़कात भी थी, खैरात भी थी, उसके पास अब नेकी नहीं है, तकसीम कर दिए और दुनिया से गए, वहां पर भी लोगों ने कहा इसको बख्श दीजिए, जन्नत ये, इनके पास बहुत सारी नेकियां है, लेकिन जब तकसीम करने पर आए सब खत्म हो गए। अब फिर उनमें से बंदा अर्ज कर रहे, पाक परवरदिगार ने मुझे गाली भी दिया था, अब तो उसके पास नेकी नहीं है, एक पाक परवरदिगार मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गुनाह उस पर लोड कर दिया जाए, मेरे गुनाह उस पर लोड कर दिया जाए। दुनिया में तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों दौलत के बलबूते पर मीटर में दबा सकते हो, लेकिन उस आखिरत के बारे में सोचो, वहां उस गरीब की जीत होगी। इसीलिए मेरा कहना है, किसी का आलू भी अगर जमीन पर पड़ा हो तो बगैर कुछ उठाओ, 10 केजी आलू लिया, एक आलू अगर चुपके से उसमें डाल दिया, सारा बर्बाद। और ये सोचिए क्या पता अगर उसी आलू में अल्लाह की गिरफ्त आ गई, अल्लाह की पकड़ हो गई, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बयान। कोई गारंटी नहीं, लोग आते हैं, इमाम साहब को भी नहीं छोड़ते, इमाम साहब झाड़ू मारे नहीं, घर चले गए, घर से आते नहीं, एक दिन ज्यादा आ गए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई उनकी भी मजबूरियां है, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी अजीज उनकी भी फैमिली है, वो हक भी अदा करना पड़ता है। अरे आप भी तो, आप कितनी मर्तबा मस्जिद में आते हो, जरा अपने आप पर गौर करो। इमाम से कहा जाता है कि झाड़ू लगाया नहीं, इमाम से कहा जाता है बल्ब जलाया नहीं। अरे सुनो, अगर जिसके दिल में मस्जिद की मोहब्बत होगी, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद झाड़ू लगाएगा। इसलिए मैंने पढ़ा है, जिसने फजर की नमाज में आकर पहले बल्ब को रोशन करता है, चिराग को जलाता है, एक फरिश्ता पैदा होता है, और फरिश्ता उसके लिए कयामत तक के लिए मग़फ़िरत की दुआ है। सुभान अल्लाह। अरे मैंने पढ़ा है, जो मस्जिद में से एक मुट्ठी गर्दो गुबार को किसी बाहर पाक जगह पर ले जाकर उसको दफन कर दे, तो ओहद पहाड़ की लंबाई कितने मीटर का है, कितना, 15 किलोमीटर का लंबाई है ओहद पहाड़ की लंबाई। मैंने पढ़ा है, जब कोई बंदा मस्जिद में से एक मुट्ठी गर्दो गुबार को निकाले, तो कल क़यामत के दिन जब मीज़ान पर वजन कराया जाएगा नामा अमाल को,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने माजा में है, इब्ने माजा में सरकार फरमाते हैं जिसने मस्जिद से किसी तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक दी या बाहर ले जाकर गाड़ दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की सुभान अल्लाह। नहीं, खुद करेगा नहीं। ये बात याद रखो, मस्जिद के इमाम को अगर इमाम जाना, इमाम माना तो आपकी नमाज होगी। और अगर 10 साल हो या 5 साल हो या 5 दिन के लिए रखो, अगर उसको इमाम नहीं माना, उसकी इक्तदा नहीं की, उसके पीछे गीबत की, तो सारी नमाज 5 दिन के लिए रखो तो उसको बादशाह गुलाम मत समझना कि मस्जिद का इमाम ये गुलाम है, हमारा नौकर है, ये हमारे गांव से पैसे लेकर के जाते, पैसे देते हैं तब पढ़ाते हैं। अगर किसी ने अल्फाज सोच लिया तो क़यामत के दिन होगा। इसीलिए कह रहा हूँ उसको करने काम से गलती है, होती है, इंसान हमसे गलती होती है भाई, उससे अकेले में जाके कहो हजरत आप ये गलत कर रहे हैं। और अगर उसको निकालना है तो उसको टाइम दो, 1 महीने के हम टाइम देते हैं, आपकी आदत सही नहीं है, आप हमारे काम को सही अंजाम देते नहीं है, तब तक आप कहीं दूसरी जगह तलाश करें। ये तरीका होगा। आखिरी बात, मर जाएंगे क्या पता, मैं घर चला जाऊंगा, कल शादी है मेरे साले की, क्या पता मर जाए, आखिरी बात बता देता हूँ, फिर बस मैं क्या पता, कोई भरोसा नहीं हो सकता है मेरी ये बात सुनकर आप लोग अगर अमल कर ले, मेरा भी बेड़ा पार हो। कुछ लोग समझते हैं नमाज पढ़ने के लिए आए, तहवन को ये गट्टा जो है ना इसके नीचे पहनते हैं, ये भी जहन्नम के हाथ में चलेगा, ये गड़बड़ है, देख लो, इसके नीचे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैंने हदीस पढ़ी है, मौत का सफर है मेरे पास, इसके नीचे लोग नमाज पढ़ते हैं तो तहवन लगता है कि वो साफ करता है, गट्टा के नीचे कपड़ा नहीं होना, इसको ध्यान में रखो, पहली बात। दूसरी, कोई रिश्ता काटता है ना, जैसे ये जलेगा वैसे वो भी जलेगा, रिश्ता काटने वाला, बुरा जानी और तहबन को गट्टू के नीचे पहनने वाला जहन्नम में। अस्तगफिरुल्लाह।